हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने एक इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड, एक $multi-million इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कैसे बनाया है यहीं इंडिया में रहते हुए। और इस वीडियो से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आई एम कोलैबोरेटिंग विद अ डियर फ्रेंड एंड माय बिजनेस पार्टनर ईशान। सो इससे पहले हम स्टार्ट करें, लेट्स वेलकम ईशान। ईशान, वेलकम अगेन। Hey brother, happy to be back. सेम हियर। As always. So hi guys, इस वीडियो में हम POD के बारे में बात करने वाले हैं and POD from India internationally, right? And I think the first time when I heard about Nishkarsh, the first thing that I heard that he and his students have been killing it doing POD. तो आज इस वीडियो में हम maximum value extract करने वाले हैं, like Nishkarsh said. So yeah, let's begin. I just want to know कि how did that journey start? You know, from day one. Let's take it from the start. शुरू में आपने कैसा क्या किया? How did you get into POD? What was day zero like? So let's go back. Okay, so I'll give you like a quick sort of teaser of how Right. the entire journey was. Yeah. 2015, got graduated from engineering, Delhi se, and then started a business with 3 other friends. Tried 10 different things to make money on the internet. Failed. 1.5 years in, we went bankrupt. Had to take 2 loans. Then built my first profitable venture was an animation video agency. I learned how to make videos using tools on the internet. Started a freelancing business, built a team, scaled it to 1 crore, and then I was like, I don't want to be in the agency business because it's very tiring, client servicing, deadlines, reviews, all of that. And I started looking for something scalable. You know, I wanted to live that laptop lifestyle, you know, working from the beach, making money, you know, with my martini and the coconut water and all that shit. That's when I got to know about dropshipping. Okay. And then I found myself a mentor. His name is Manny Amari, and I went on a call with him. He was working with a lot of people and getting them results. Okay, so I got on a call with him. He said that yes, I can mentor you, and but it's going to take $10,000. Wow. And my partner and I from back then, in a company account, we had $12,000. We paid him $10,000. Kept $2,000 to run ads. And in 2017, I remember it was the month of April, I started my dropshipping business. First month, we tried what you are really good at, international dropshipping, but I could not make it work, okay? I tried products, random products, baby products and all that, kid products, right? Okay. Could not make it work. And tried different products and niches. And then the second month, international POD started for us. And I remember that pehle we were fulfilling from China. You know, we found a Chinese vendor, but then COVID happened after a couple of years in 2020. Right. So then we had to shift to working with US-based vendors. So then we started working with US-based vendors. And then we also tried doing things from India in terms of the Okay, fulfillment. so of course talking about US-based vendors or a better supplier per se, वो तो तब था, right? But आज की डेट में like what are you seeing? क्या recommend करोगे in terms of the right tools for POD? सो यार देखो, इंटरनेशनल POD फुलफिलमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट अभी मैं रिसेंटली कम्युनिटी से एक टूल के बारे में सुन रहा हूँ जो काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ उनके जो मतलब जो प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं, फुलफिलमेंट है, प्राइसिंग है. सो इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. सो मे बी वी कैन ऑल्सो शेयर इट विद एवरीबडी. Oh yeah, we should definitely. तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे. सो इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ अपनी कम्युनिटी से, और मैंने भी इनको चेकआउट किया. आई थिंक दे प्रीटी गुड. सो दे आर कॉल्ड AutoDS. अब इनका जब तुम प्रिंट ऑन डिमांड फीचर देखोगे, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सीमलेस इनका UI वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह अपलोड हो जाते हैं. इनफैक्ट मैं तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ कैसा लगता है. तो जब तुम अंदर AutoDS में जाते हो और यहाँ तुम प्रिंट ऑन डिमांड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं. जैसे ये ऑल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. प्रिंटेड अपैरल है जिसमें आप मतलब फुल प्रिंट वाला भी कर सकते हो, क्योंकि लोगों को लगता है POD इज़ जस्ट टी-शर्ट्स. तो मतलब वही यहाँ पे प्रिंटेड वाले टी-शर्ट्स, बट प्रिंटेड ओवरऑल प्रिंट्स हैं. इसके अलावा आपके पास हुडीज़ हैं, बच्चों के कपड़े हैं. इसके बाद फुल प्रिंटेड अपैरल आ जाता है. एक्सेसरीज़ आ जाती हैं. एक्सेसरीज़ में आपके पास आईफोन केस है, या टम्बलर्स वगैरह हो गए, मग्स वगैरह हो गए, इवन ऑटो सनशेड्स वगैरह हो गए. डेकोरेशन के आइटम्स भी हैं, जैसे अगर आपको LED वगैरह चाहिए. मेरे को एक LED चाहिए अपने ऑफिस के लिए. They've got a lot of variety. Really good. Yeah, in the products, right? So और तब नहीं था यार ये सब, you know, राइट. सो यहाँ पे ये AutoDS में ये सब चीज़ें हैं, कैनवस वगैरह, एंड इवन फुटवेयर भी है. मतलब अगर किसी को फुटवेयर ब्रांड स्टार्ट करना हो, कुछ प्रिंट्स वगैरह ऐड करके होम एंड लिविंग के प्रोडक्ट्स भी हैं इसमें. मान लेते हैं part I find really cool. Like you can मतलब अपना जूता बना सकते हो यार with your design. हाँ, टी-शर्ट तो हर कोई बनाता है, जूता ब्रांड बनाओ. तो फ्लैग्स वगैरह वगैरह, एंड अगर प्रिंटेड इन यूरोप टाइप वाली चीज़ें देखनी है तो इट्स लाइक प्रीटी गुड. अब एक एग्जांपल देता हूँ ये वर्क कैसे करेगा. अब मान लो भाई मेरे को टैंक टॉप बेचना है, एंड बाय द वे टैंक टॉप फिटनेस नीश में काफ़ी अच्छा काम करता है. हाँ, नीशेस के बारे में आगे भी बात करते हैं, बट लेट्स से टैंक टॉप मुझे बेचना है. अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया. अब कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट लेट्स से मैं एडिट प्रोडक्ट पे गया. एडिट प्रोडक्ट पे जाने के बाद मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगा. दैट लेट्स से मुझे ब्लैक कलर पे चाहिए. सो आई सेलेक्टेड द ब्लैक कलर, एंड इसके बाद मुझे इमेज ऐड करनी है. तो मैं ऐड इमेज पे जाऊँगा.
एंड देन आई विल अपलोड वन ऑफ द रैंडम डिज़ाइंस. ओके, तो ये हम लोगों ने ये एक रैंडम डिज़ाइन है आप लोगों के लिए अपलोड हो गया है. अब इसमें उसको रीसाइज वगैरह कर सकते हो, छोटा बड़ा कर लो, प्लेस कर लो यहाँ पे. इसके बाद सेव करोगे तो ये, और यहाँ अगर आपको बैक पे भी ऐड करना है बैक पे कर सकते हो, मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हो. और सेव करने से पहले आप क्या कर सकते हो, आप प्रीव्यू पे जाके इसका मॉकअप भी देख सकते हो कि ओवरऑल लगेगा कैसे. तो मान लो हम लोग प्रीव्यू पे चला जाते हैं तो ये आपके वेबसाइट पे जो मॉकअप है अभी आपको दिखा देगा जनरेट करके कैसा लगने वाला है. तो देखो ये प्रॉपर मॉकअप है जो आपका दिखेगा आपके प्रोडक्ट पेज पे. फिर जब सेव वगैरह पे जाओगे तो ये थोड़ा प्रोसेस करेगा, इसको थोड़ा सा प्रोसेस होने देते हैं. उसके बाद ये देखो आपको दिख रहा है कि द ड्राफ्ट अपलोड प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड, क्लिक टू व्यू. तो जब व्यू पे जाओगे तो यहाँ अपलोड्स में ऑलरेडी मान लो 91 प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे हैं. तो ये वाली चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर ली है. एंड इस पर आप जाओगे, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके डायरेक्टली शॉपिफाई स्टोर पे भी इंपोर्ट हो जाएगा. और प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने से पहले आप इसको एडिट कर सकते हो. तो मान लो मैंने यहाँ क्लिक टू एडिट पे क्लिक किया. अब यहाँ पे जाके मान लो मैं सबसे पहले एडिट करना चाहता हूँ इसका टाइटल. तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो मैंने इसके लिए एक टाइटल डाल दिया, डीजे कैट वेस्ट कर देते हैं. एंड ये करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके लोकेशन ट्राई करके देखते हैं. ऑल्दो इसको यूएस ही छोड़ देंगे बिकॉज ये इंटरनेशनल पीओडी कर रहे हैं तो यूएस से ही शिप होगा. बट मान लो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको इंडिया कर देता हूँ. तो मैंने यहाँ पे लोकेशन में डाल दिया इंडिया. ठीक है, तो ऐसे करके आप डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो. आप ये भी देख सकते हो कि इमेजेस जो आपने ऐड करी है वो कैसी दिख रही हैं, और इमेजेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. एंड देन ऑफ कोर्स सेव करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हो. और जब प्रोडक्ट्स पे चले जाओगे तो यहाँ प्रोडक्ट्स पे आपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट मारे होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाया करेंगे. तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टूल है, सिंपल टू यूज़ है, काफ़ी ऑप्शंस हैं, प्राइसिंग वगैरह भी अच्छी है. एंड वन क्लिक इंपोर्ट है जो डायरेक्टली आपके शॉपिफाई स्टोर पे एक बार इससे कनेक्ट कर लोगे डायरेक्टली वहाँ पे उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर दिया करेगा. तो आई थिंक यू गाइस कैन गो फॉर दिस टूल. So yeah, I think that was a really cool tool. मैंने भी already actually dropshipping के लिए use किया है. And I think they have a lot of tools there to make life easy for you as a e-commerce entrepreneur. But you know what I want to touch back on is the journey, right? आपने अभी बताया था कि you started off and if I remember you said कि आपके पास $12,000 थे, but you invested 10,000 out of that, which is basically all of it into a mentorship. And I think where I want to dive into your mindset at that point in This is 2017. 2017. So what were you thinking then jo aapko you could take that big bet and almost go all in, without maybe having a past where let's say you had a working model, you went all in, you had that faith, there was something there. So I think the viewers will benefit from this because clearly it worked for you. So what was it exactly? तो यार उस time it was pretty simple. I think I wanted things in a very simple way, honestly. Right. मुझे easy चीज़ें पसंद है कि भाई वो चीज़ें करो ना. अगर आपको मतलब there are always multiple ways to do something, right? So you should pick the simplest part. Multiple ways to skin a cat. Yeah. कि जो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, मैं सबसे जल्दी वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, राइट? तो मेरा पॉइंट ए था मुझे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना है. पॉइंट बी था भाई मुझे 6 फिगर अ मंथ करना है, राइट? कैसे जाऊँ जल्दी से जल्दी. तो वहाँ पे मुझे पता चला इस बंदे के बारे में. मैं फेसबुक ग्रुप्स का पार्ट था, तो वहाँ पे दिस गाय वाज क्रिएटिंग कंटेंट एंड इसके स्टूडेंट्स भी रिजल्ट्स डाल के इनको टैग कर रहे थे. हिज नेम इज मैनी अमारी, लाइक आई सेड. सो आई रीच्ड आउट टू हिम एंड देन व्हेन आई कॉल्ड and I was like, I was sure that a guy can help me because social proof था, स्टूडेंट रिजल्ट्स उनके काफ़ी थे. बंदा मुझे खुद अच्छा लगा, उसके खुद के रिजल्ट अच्छे थे, बात करने में मुझे अच्छा लगा. एंड आई जस्ट जॉइंड इट बिकॉज मुझे था यार मैं खुद फिगर आउट करूँ, यूट्यूब पे जाऊँ या ब्लॉग्स पढ़ूँ, रादर देन दैट. क्योंकि हर इंसान अलग बातें करता है भाई, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा. मुझे एक प्रोसेस बता दो कि ये ऐसे कर ले और ऐसा रिजल्ट आएगा. और अगर फिर रिजल्ट आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि फेरी टेल होगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी. सो आई वांटेड समवन जिससे मैं प्रॉब्लम आए तो बात कर सकूँ कि भाई मेरे ऐड में दिक्कत आ रही है या मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट यू मेंशन, राइट? दैट हर बंदा कुछ अलग बताता है. एंड इवन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट, आई ट्राइड टू टेक bits and pieces of advice from different people and that was the worst thing ever because एक बंदा कहता है कि अच्छा ऐसे चलाओ यार, एक कहता है ऐसे चलाओ, and there's so much contradiction happening. The moment I switched to just one mentor, right, and just listened to him and had that faith based on his credentials, that's where the game changed for me. And I think this is something very similar, right? Yeah, absolutely. I agree. So you got the mentorship, right? उसके बाद क्या था? Like how did you start? How was the journey after that? Let's walk through that, right? Sure, yeah. तो देखो जब मैंने मेंटोरशिप ज्वाइन करी थी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के लिए, जो आप करते आए हो, राइट? तो 1 महीने के लिए मैंने हर तरह का प्रोडक्ट ट्राई मार लिया.
एंड ऑलमोस्ट मेरा एड बजट भी खत्म होने वाला था, जो हमने $1,500-2,000 रखे थे, Okay. और मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो 1 महीना हो गया, प्रोडक्ट्स मिले, मतलब वही गलतियाँ करी जहाँ सेल आई उसको स्केल करने लग गए, KPIs वगैरह ध्यान नहीं रखे, राइट। तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने बोला भाई मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे बोला यार तू प्रोसेस तो समझ ही गया है, तो तू प्रिंटेड टी शर्ट्स वगैरह ट्राई करके देख, प्रिंट ऑन डिमांड ट्राई करके देख। तो मैंने कहा ठीक है, कैसे करना है। तो मेरे साथ वो कॉल पे आया और उसने मुझे बताया देख भाई ये मॉकअप टी शर्ट एक प्लेन मॉकअप होता है, कैनवा पे चाहिए, डिज़ाइन फाइबर से बनवा ले, और डिज़ाइन रिसर्च ऐसे फंडा समझ आ गया था कि जैसे तो भी फिजिकल प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा है, टी शर्ट्स वगैरह कर ले, मतलब ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स ना करके टी शर्ट रिसर्च कर और डिज़ाइन बनवा, अपलोड कर, वेंडर तेरे को चाइनीज़ मिल जाएगा तो चाइनीज़ से वेंडर ढूंढ ले, एड्स तेरे को चलानी आई गई है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने तो वो जैसे अभी अपने AutoDS में डिजाइन अपलोड किया था, वैसे ही एक डिजाइन बना के फाइवर से ऐसे ही अपलोड करना है। हाँ। बट ऐसा टूल नहीं था, बट समथिंग सिमिलर। हाँ, तब तो बिल्कुल मैनुअल था, मतलब तब था कि फोटो अपलोड करके शॉपिफाई स्टोर पे डाल, फिर फुलफिलमेंट मेरा चाइनीज सप्लायर करता था तब, गॉट इट। तो ऑर्डर एक्सपोर्ट करके मैं उसको भेजा करता था उस टाइम पे। ओके। तो ये CSV शीट, राइट, सो मोर TDS back in the वेरी, day. हाँ वेरी मैनुअल, Yeah, राइट, कोई got it. प्लेटफॉर्म नहीं था। तो Got it. फिर हमने वो चीज़ करनी शुरू करी यार, एंड पहले महीने ही में मुझे विनिंग डिज़ाइन मिल गया, एंड हमारे पहले महीने में हम $134,000 इन सेल्स कर गए, विच वाज May of 2017. Okay, that's almost a crore. या ऑलमोस्ट, I remember it was 90 lakhs something, Yeah, right? almost crore. तो वो कर गए, फिर अपना दूसरा महीना भी अच्छा रहा, फिर ड्रॉप आया, फिर अच्छा रहा, तो पहले साल हम लोग $1 million का रेवेन्यू क्रॉस कर गए। Oh, wow. एंड आई वाज लाइक भाई बढ़िया, ये तो मतलब सीन सेट है। और उसके बाद अगले मतलब तब से लेकर अब तक इंटरनेशनल POD करके आई थिंक हम लोग कुछ 6, मतलब मैं और मेरे पार्टनर कुछ $5 से $6 मिलियन का रेवेन्यू कर चुके हैं, Wow. जस्ट थ्रू इंटरनेशनल POD अक्रॉस मल्टीपल स्टोर्स। हमने काफ़ी स्टोर्स स्टार्ट करे, बंद करे, मिस्टेक्स करी, अच्छी करी, बट अगर मैं इन टोटालिटी जर्नी देखता हूँ तो कुछ $5.5 से $6 मिलियन इन सेल्स हो चुके हैं अब तक, इन जस्ट थ्रू इंटरनेशनल POD। Awesome. जैसे हमने अभी एक I think DJ Cat था, we tried to make a design, right? But who ships it out? Like, is it a manufacturer? Does AutoDS do it? कैसे होता है? हाँ हाँ, लाइक यू सेड यार, तो जो आपका POD फुलफिलमेंट पार्टनर है वही शिपिंग करेगा। Okay. तो जैसे AutoDS वगैरह पे आपने अपलोड वगैरह करके दिखा दिया डिज़ाइन, आपका शॉपिफाई पे वो बन गया, फिर आप ट्रैफिक भेजोगे, कस्टमर्स भेजोगे, जैसे ही ऑर्डर आएगा तो वो जो डिज़ाइन है वो आपका सप्लायर लेट्स से AutoDS प्रिंट करेगा टी शर्ट पे या जो भी प्रोडक्ट ने सेलेक्ट किया उसको डायरेक्टली, तो सब कुछ वही करेगा, right? एवरीथिंग। और मतलब फ्रॉम बस आपको एक बार ट्रैफिक भेजना है, उसके बाद आ जाएगा प्रिंटिंग, शिपिंग, वो ट्रैकिंग लिंक ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, मतलब सब बड़ा हैंड्स फ्री है उसका, और बस कैश कलेक्ट करना है, राइट? कैश कलेक्ट, राइट, ऑसम। सो ठीक है, सप्लायर इज शिप द प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लाइक व्हाट इज द विनिंग डिजाइन, लाइक व्हाट इज द राइट वे टू रिसर्च अ विनिंग डिजाइन? या जस्ट इंटरेस्टेड टू नो, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में अलग होता है टू फाइंड द प्रोडक्ट्स, बट डिजाइन एक तरह से प्रोडक्ट ही है इसमें, तो वो कैसे ढूंढे? ओके, तो रिसर्च करने के अलग अलग तरीके हैं। मेरे लिए जो बेस्ट तरीका काम किया है वो है मार्केट प्लेसेस पे जाना और देखना कि उनके लिए क्या काम कर रहा है। राइट। बेस्ट POD प्रोडक्ट टी शर्ट्स है, प्रिंटेड टी शर्ट्स हैंड्स डाउन। इवन द शॉपिफाई की अर्ली रिपोर्ट आती है उसमें टॉप पे अपैरल ही होता है, टी शर्ट्स इज इन द कैटेगरी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कि हम वो कैसे करते हैं। द मार्केट प्लेस, माई पर्सनल फेवरेट मार्केट प्लेस इज Etsy से ही मुझे अपनी विनिंग नीश मिली है हमेशा, जिस नीश में सबसे ज़्यादा आज हम ऑपरेट करते हैं, जिससे हमने मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू अपना किया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि यू नो Etsy पे कैसे करना है। ओके, तो अब Etsy पे जब आ जाओगे, Etsy पे आओ, यहाँ कैटेगरीज पे चले जाओ, एंड या तो क्या करो कि डायरेक्टली टी शर्ट वगैरह सर्च कर लो, या मान लो हम क्लोथिंग पे आ जाते हैं। अब क्लोथिंग पे आने के बाद वेट करते हैं खुल जाए, मान लो मैं विमेंस क्लोथिंग पे चला जाता हूँ, एंड देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी टी शर्ट्स वगैरह दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू नीड टू सी कि भाई सबसे ज़्यादा जिसमें रिव्यूज़ हैं वो वाला सेलर है, वो अच्छा काम कर रहा है। जैसे मान लो इन्होंने आउल वाला कोई प्रिंट करा हुआ है, ये ऑटिज्म रिलेटेड कोई टी शर्ट है। ऐसे आप थोड़ा बहुत और स्क्रॉल करोगे तो आपको काफ़ी सारे, जैसे मामा करके है, आपको काफ़ी सारे वो दिख जाएंगे। एंड आइडली व्हाट यू लुकिंग फॉर इज़ कि भाई जिसके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा है, मतलब फिगर समझ जाओ कि ये बंदा भाई कुछ सही कर रहा है। तो एक तो हमने चलो क्लोथिंग वगैरह ट्राई कर लिया, आप इसमें और डीप जाना है तो टॉप्स एंड टीज़ पे चले जाओ। टॉप्स एंड टीज़ पे जाओगे, फिर टी शर्ट्स पे अगर तुम चले जाओगे तो अभी तुम्हें डायरेक्टली, और ये मैं विमेन में देख रहा हूँ, मैन में भी किया जा सकता है। जैसे देखो ये डैड इस्टेब्लिश 2001 ऑटिज्म वाला आ गया, कॉशन आई हैव नो फिल्टर। तो ऐसे कर करके यू वुड बी एबल टू सी मल्टीपल ऑफ देम। आइडली व्हाट यू नीड टू लुक फॉर इस जिसमें सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, मुझे वो सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेते रहनी। जैसे सेम मामा वाली टी शर्ट आ चुकी है यहाँ पे, दिस इज़ माई रॉटिंग इन बेड शर्ट, तो फनी स्टफ है, माई टमी हर्ट्स,
ऐसे करके व्हाट आई वुड डू इज मैं उनके स्क्रीनशॉट लेता रहूंगा जो डिज़ाइन मुझे सही लग रहे हैं. अब सवाल ये आ जाता है यार कि इतने सारे डिज़ाइन सामने आ गए, मैं शॉर्टलिस्ट कौन से करूँ. एक तो मैंने बताया जिसमें रिव्यू सबसे ज़्यादा है, उनको शॉर्टलिस्ट वगैरह कर लो. और हमने ये देखा है कि कोई भी अच्छा जो डिज़ाइन हमारे लिए चला है उसमें ना 4 क्वालिटी होती है. Okay. इसको मैं बोलता हूँ 4S फॉर्मूला. ओके, सो द 4S फॉर्मूला सेज दैट एनी टी शर्ट डिजाइन दैट यू शॉर्टलिस्ट, दैट यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ, इट नीड्स टू हैव 4 क्वालिटीज. द फर्स्ट क्वालिटी इज इट शुड बी सिंपल. मतलब व्हेन यू लुक एट इट यू शुड बी एबल टू टेल व्हाट इज दिस, राइट. इट शुड नॉट बी लाइक सुपर वियर्ड कि भाई देख के समझना है, आप ही को नहीं समझ आ रहा कि ये है क्या तो बेचोगे कैसे, राइट. दूसरी चीज हो जाती है इट शुड बी स्पेसिफिक. मतलब व्हेन यू लुक एट इट यू शुड बी एबल टू टेल दैट who is this for, right. Now let's say I see a t-shirt which I know what it is, but I don't know who I'm going to sell it to. कि मैं बेचूंगा किसको, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है. तो it should be simple and it should be specific so that you know that who is my target audience here. The third thing here is that it should have a couple of words. तो मैं इसको sentence बोल देता हूँ that when I say the sentence in the 4S means कुछ words हो उसमें, 3-4 words कम से कम हो. Ideally a quote but not a very long one. 3 to 4 words, 5 words is what we've seen works best. Okay. So in terms of quotes, not long. Gets crowded there in the t-shirt. Yes, yes, yeah. And the fourth is it should be scalable. Scalable मतलब audience बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए. Let's say मुझे एक टी-शर्ट डिज़ाइन दिखी जिसमें लिखा है मुझे इंडिया में मान लो करना है या इंटरनेशनल करना है और वहाँ पे लिखा है grandfathers who play a guitar and also love to travel. अब भाई ग्रैंड फादर्स हु प्ले द गिटार एंड लव टू ट्रैवल इज लाइक वेरी स्पेसिफिक. भाई इतना ज़्यादा छोटी ऑडियंस है. आई वांट समथिंग स्केलेबल. जैसे मदर्स हो गई, मदर्स की कोई टी शर्ट है, बच्चों के लिए, फादर्स के लिए, or like the pets thing we did with the cat. Yeah, the cat, right? So pets वाली चीज़ हो गई, babies वाली चीज़ हो गई. So something that's scalable. So as long as the designs are satisfying the 4S formula, have these 4 S's check, उनको आप screenshot लेते रहो, then send them to your designer. Designer आपको उनसे कुछ similar और better create करेगा. कॉपी मत करो, अनएथिकल है, बट कुछ similar better आपको create करेगा कि और उसको ये बोलो कि भाई डिजाइन की फील सेम रहनी चाहिए. मतलब आजकल there are a lot of AI tools. आप डिजाइन डालोगे, I think there's something called free pick or something, तो वो उस डिजाइन के ना different variations निकाल देगा based on the basic design. So it will take inspiration and the AI will create 5 more designs. So it's not a copy. It's actually a different version of it, which is what exactly you were trying to do. Oh, that's nice. Now, we haven't tried it, but I'm sure I'll give it a shot. Yeah. But अभी हम क्या करते हैं, वो डिज़ाइन निकाल के दे दिए डिज़ाइनर को और उसको बोलते हैं भाई सिमिलर बेटर बना, कॉपी मत कर, सिमिलर फॉन्ट्स यूज कर. मतलब फील शुड बी द सेम. Correct. कि ये ना लगे कि यार ये कुछ और दिखा दिया, कुछ और दिखा दिया. The t-shirt should be the same. The essence should be the same, vibe same आनी चाहिए. And then we just take it to the next step and we upload it to the store and we start running ads. Perfect. Alright, so I think to start from the top, प्रोडक्ट ढूंढने से पहले, एंड आई थिंक हमने पहले वीडियोस में भी कवर किया है कि यार नीश पता होनी चाहिए, राइट. बिकॉज नीश के बाद प्रोडक्ट आता है एंड यू वांट टू बी गोइंग फॉर नीशेस जिसमें टैम ज़्यादा हो, राइट. द एड्रेसेबल मार्केट इज अ लॉट और वाइडर और बिगर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. So what niches have worked the best for you? So first of all, I think every niche has potential. If you see someone else doing well in any niche, even you can. But हर चीज़ सबके लिए काम नहीं करती. So for me, there are couple of niches that have made us most of the revenues that we have. सबसे पहले तो fitness है. So we've done a lot of gym related t-shirts, running, yoga, Pilates. So we've done a lot of t-shirts related to fitness. Then we've got relationships, mom, dad, grandfather, grandmother, right? So because there's emotion. So whenever you, all these, the best t-shirts, I feel, the best designs are the ones that evoke an emotion in the person wearing them, right? So fitness में भाई लोगों को लगता है हाँ भाई मैं जिम जाता हूँ, एक emotion है pride का. Relationships में एक emotion है love का, when I'm giving a gift to a brother or a friend or whatever, right? Then we've got teachers. So a lot of t-shirts that are about teachers कि भाई I teach tiny toddlers, something like that. So वो भी एक pride देता है teacher को, मेरा profession है, I'm really proud of what I do. And then there's events like anniversary आ रही है किसी की तो वो proudly पहन रहा है, or maybe उसका birthday आ रहा है, proudly turning 50, proudly turning 40, या wearing. And this is also I survived, giftable also to people, yes, right? I survived 30 years of marriage, something of that sort. Yeah, funny. तो इस तरह की चीज़ें. So these are the 4 main niches that we've usually seen the most success with. Perfect. So we've got niches, we've got the kind of designs. Now the favorite part, at least mine, the ads. Yeah. Are ads different for POD, like dropshipping, or how is it? So fundas are the same. Right. And there are a lot of videos that we already have on the channel जहाँ पे हमने ads की डिटेल में बात करी है, तो उसका लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा, स्क्रीन पे भी पॉप करके दिखा देता हूँ, जिसमें हमने बात ही इस चीज़ के बारे में करी है. बट एक चीज़ बता देता हूँ, देखो कोर फंडामेंटल वही है कि आप कम बजट से स्टार्ट करो, 3-4 एड सेट लॉन्च करो सिंगल इंटरेस्ट वाले.
हर एड सेट के साथ 3 एड्स हम लॉन्च करते हैं और तीनों एड्स में डिज़ाइन सेम रहता है, मॉकअप अलग होता है. Okay. सो लेट्स से अगर एक डिज़ाइन मेरा सेट है तो एक मे बी मॉकअप है, एक मे बी एक बंदी ने टी शर्ट हवा में पकड़ी हुई है और उसमें वो डिज़ाइन है. दूसरा है कि टी शर्ट टेबल पे है, आसपास कुछ फूल पत्ती पड़े हैं और सेम डिज़ाइन हमने वहाँ कैनवास से ड्रैग ड्रॉप कर दिया. एक है जिसमें मे बी कोई मतलब इट डिपेंड्स. तो हमारे पास ऐसे ना एक मॉकअप की लाइब्रेरी है 10-15. Right. एटसी से कोई खरीद भी सकता है जाके और हम मॉकअप्स और AI tools भी काफी अब mockups बना रहे हैं. yes Again. AI से भी करा जा सकता है. Right. And then whatever mockup works well for us, we start scaling that particular ad. Perfect. So I think, yeah, we've covered a lot of Facebook ad strategy, especially the last one we did, which Yeah. should be out by the time we're recording this. Yeah. So cool. Ads, great. Niche is perfect. Now about the operations, right? Because ops can make or break the game. So what about ops? So the best thing about POD is that if you work with a POD supplier, your ops are like very seamless. Okay. Like we spoke about AutoDS also, right? Right. So you एक बार आपने उसको अपने स्टोर से कनेक्ट कर लिया तो सारी फुलफिलमेंट आपका सप्लायर देख रहा है. POD में सबसे प्यारी बात यह है कि रिटर्न रेट, रिफंड रेट 0.1-0.2% टाइप रहता है. Okay. There was a point wherein my return rate was 0.04%, that negligible. Because sizing issues नहीं आते. ये सारे जो fulfillment companies हैं US based ही हैं, right? तो इनको पता है US की क्या वो है. बट अगर आते भी हैं तो exchanges हम दे देते हैं, right? तो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता ऑप्स में. इवन राइट नाउ फॉर आर इंडियन एंड इंटरनेशनल POD बिजनेस वी जस्ट गॉट वन एम्प्लॉई who looks after the ops. And when I say ops, it means the support desk. Got it. सपोर्ट ईमेल है अपने पास. इंडिया में व्हाट्सएप भी है, बाहर के लिए ईमेल है. एंड उसमें कोई ज़्यादातर क्वेरीज यही आती हैं कि भाई साइज़ अगर मान लो इशू आ गया तो उसके लिए हम लोग एक्सचेंज प्रोवाइड करा देते हैं. बहुत ना के बराबर क्वेरीज होती हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट क्वालिटी. तो प्रोडक्ट क्वालिटी वाले इशूज़ नहीं आते हैं बिकॉज वी वर्क विद गुड सप्लायर्स. लाइक आई सेड, आई गिव यू एन एग्जांपल. एंड एक्सचेंज का प्रोसेस सिंपल है. हम उसको बोलते हैं वो जो तेरे को मिल गया वो तू रख एंड वील सेंड यू रिप्लेसमेंट. एज मतलब वो एंगल ऐसे कर देते हैं कि जो आपको मिला है वो एज अ गिफ्ट आप रखो. Correct. हम आपको रिप्लेसमेंट भेजते So हैं. even if the वापस customer मंगाने is का पैसा ना dissatisfied initially because he gets another or she gets another product, now they leave satisfied because Yes. they paid for one but they've got two in return. ट्रू दैट. एंड बाकी इंडियन अगर मैं वैसे बात करूँ तो उसमें हम लोग RTO मैनेजमेंट के लिए चीज़ें करते हैं जो हमने पहले भी बात करी है. बट इंटरनेशनल में RTO नहीं होता है, राइट? स्मूथ है ज़्यादा चीज़ें. Right. मेन चीज़ आ जाती है फिर मुझे लगता है कंपनी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से. Correct. पहले जब हमने स्टार्ट किया तो इंडियन सेटअप था, इंडियन कंपनी, इंडियन पेपैल. बट फिर रियलाइज़ हुआ भाई ऐसे करके तो नहीं चल पाएगा. GST लगता है, फिर आपका करेंसी कन्वर्जन काफ़ी होता है, राइट? तो फिर मैंने क्या किया, आई हैव अ पार्टनर in the US, right? So I've got this business partner and we've got a company there, and वहीं से so we have a US card, US bank account. तो हमारा सारा वहीं से हम payments accept करते हैं. So we've got a company set up. Got it. And I also wanted to ask you actually, so when you started out, right? I'm sure आपके भी challenges रहे and you have a setup in Hong Kong, right? Correct. So how does that work? Just to share with people. Yeah, sure. So हमारा भी setup US में भी है, but वो थोड़ा dormant है. The reason why we selected Hong Kong again is I think we've mentioned this in the previous videos also कि उसका zero tax structure है, right? So you don't pay any tax, corporate income or any sort of tax on your e-commerce business. If and only if you don't have an economic presence in the country, which is basically in simple terms या simple भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर आप हांगकांग सिटीजन्स को नहीं बेच रहे कुछ, आपकी सप्लाई और प्रोडक्शन अगर हांगकांग में नहीं है, आप बाहर का माल बाहर के कस्टमर को बेच रहे हो, तो इस केस में चाइना से आप माल ले रहे हो और आप US में बेच रहे हो, आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है, करेक्ट? तो आपका जीरो स्ट्रक्चर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस. एंड लाइक यू सेड, डूइंग बिजनेस फ्रॉम इंडिया विद इंडियन बैंकिंग इज अ लिटिल टीडियस जब आप इंटरनेशनल कर रहे हो. So with Hong Kong, we got access to payment processing, which is a huge thing, right? So Stripe accounts, PayPal accounts, and because of Hong Kong being in Asia, so you can always go there. I might go there next month actually, like I told you before this, for a China trip. So I think that's how we did it, and it's worked for us. Nice. And the people who've helped you set up the Hong Kong setup, maybe we can just we will drop a link. Link में हम description में add कर देंगे. ठीक है यार. So I think this was super valuable. We did something different today. We talked about POD. We spoke about AutoDS, which is an awesome tool. काफ़ी मज़ा आया मेरे को, and hopefully people got value from this. And this is. We'll come back with more.
चीयर्स ब्रो। Awesome. Cheers. गाइज अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, तुम्हें मज़ा आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम्हें इंटरनेशनल पीओडी करना है तो ऑटो डीएस का लिंक हमने नीचे ऐड कर दिया है, इसमें तुम्हें एक फ्री 30 डे ट्रायल मिल जाएगा। सो लिंक हमने बायो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो देख लेना। एंड अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी हेल्प करें एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस बनाने में, सो नीचे हमने हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने का लिंक डाल दिया है, तो जाके उस पर अप्लाई कर लो। अगर तुम क्वालिफाई करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप दिख जाएगा। दैट्स इट, वी गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।